ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਡਰਾਈਵ the expression for centripetal force acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ F, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਮਾਸ ਉੱਪਰ। ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯਾਨੀ v ਉੱਪਰ। ਫੋਰਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਲਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 1 ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ a ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ b ਲੈ ਲਈ, ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ c ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? f depends upon m raised to power a, v raised to power b and r raised to power c। ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ? suppose that the force F acts on particle varies as eighth power of m, bth power of v and cth power of r। so जो साइन है डिपेंड्स अपॉन वाला, इनू रिमूव करना है। इनू रिमूव करके असी की लिखांगे? इज इक्वल्स टू, जब भी असी इज इक्वल्स टू लिखना है तो असी कुछ कॉन्स्टेंट लिखना। कॉन्स्टेंट असी लिखता के m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c। डायमेंशन एनालिसिस दे फॉर्मूलाज यूज करांगे। फोर्स दा डायमेंशन फॉर्मूला की हुंदा? mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 इज इक्वल्स टू। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? k m raised to power a, v raised to power b and r raised to power c। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। k ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, k ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ m ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? m raised to power ਕੀ ਹੈ? a। ਨੈਕਸਟ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? lt minus 1 raised to power b and r is a radius, radius is also a length, l raised to power c। now solving m raised to power a, it means l raised to power b, t raised to power minus b। जो अब b है दोनों नाल मल्टीप्लाई होएगा, मतलब कि इत्थे पावर 1 और l raised to power इत्थे 1 है, की हो जाएगी c। नेक्स्ट स्टेप m raised to power a, इत्थे l रेज टू पावर b है, इत्थे l रेज टू पावर की है c। l रेज टू पावर b, इत्थे l रेज टू पावर c। बेस सेम है दोनों, पावर्स की होणगियां विच मल्टीप्लाई दा साइन होवे तां ऐड हुंदियां, ते की बन जाएगा b प्लस c। असी प्रॉपर्टी की पढ़ी हुई है? a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n। नेक्स्ट है t, t रेज टू पावर इत्थे की है? माइनस b। हुण साडे कोल आ रिलेशन सी, लैफ्ट साइड दा डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, राइट साइड दा भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। हुण कंपैरिजन करदे हां, क्योंकि इहदी पावर a है, b प्लस c इहदी पावर माइनस b है, बट इधरली साइड ते की m दी पावर 1, l दी पावर 1, t रेज टू पावर माइनस 2। नैक्सट असी की करांगे? लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दे कोएफिशिएंट्स नूं कंपेयर करांगे। comparing the dimensions of m
L and T on both sides means left hand side and right hand side. ਹੁਣ देखो left hand side ਵਿੱਚ m raised to power ਕੀ ਹੈ 1, right side ਤੇ ਕੀ ਹੈ m raised to power a. so a raised to a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1. left hand side ਤੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1 is equals to right side ਤੇ ਕੀ ਹੈ b plus c. ठीक है. थर्ड की होया left side ते t raised to power की है -2, राइट साइड ते किन्नी है माइनस ऑफ b. तो इथों b दी वैल्यू की आ गई 2. तब b दी वैल्यू 2 असीं इत्थे पुट कर देंगे 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस c. c दी वैल्यू की आ गई 1 - 2 यानी कि c इज इक्वल्स टू -1. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ a b ਤੇ c ਦੀਆਂ. ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਆਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ k m ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a ਸੀ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ. v ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਹੈ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. r ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ c ਹੈ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ mv² ਓਵਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆ r. ऊपर पावर -1 है नीचे जाके +1 बन जाएगी. तो साडे कोल जो फोर्स दा रिलेशन की आ गया mv² अपॉन r अगे कांस्टेंट की है k. ठीक है. ये साडे कोल सेंट्रीपिटल फोर्स दा रिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी पॉइजलीज इक्वेशन की है v इज इक्वल्स टू π/8 p r raised to power 4 eta l. डिटरमाइन द dimensions of eta. here eta की है coefficient of viscosity. coefficient of viscosity जो आ साइन है इनू बोलते हैं ईटा. इथे जो टर्म v है की है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम. मतलब 1 सेकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ v. ठीक है. π/8 की एक कांस्टेंट है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ. p ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ pressure, r radius, eta coefficient of viscosity and l is length. ठीक है. now we have to derive the relation for eta. ਤਾਂ ਅਸੀਂ eta ਲਈ फाइंड आउट करना. ईटा ਨੂੰ एज अ सब्जेक्ट रख लिया. सॉल्व करो. तो पहले लिखो v इज इक्वल्स टू π/8 p r raised to power 4 ईटा बाय l. अगर ईटा की वैल्यू कढ़नी है ईटा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ चले जाइए. π/8 एज इट इज p r raised to power 4 v नीचे आ जाएगा v l. ठीक है. हुन π/8 की है कांस्टेंट है. dimensions of eta and dimensions of whole this term. ਤਾਂ p ਦੀਆਂ dimensions ਕੀ ਹੈ p ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ pressure ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ force over area. force ਕੀ ਹੈ mlt -2 over area l². ठीक है. सॉल्व किया की बन गया m l रेज टू पावर ऊपर 1 नीचे 2 की बन गया l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर -2. सो इथे पुट करो m l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर -2 इनटू r की एक रेडियस यानी कि l रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय v की है इथे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम का मतलब किया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी कि ऊपर l³ नीचे की होएगा टाइम. सॉल्व किया कि बन गया है l3t -1. सो इथे पुट करांगे l3t -1. l दियां डायमेंशंस l. नाउ m l raised to power -1 l raised to power
4 की बन गया l रेज टू पावर -1 प्लस 4 t रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय नीचे की इत्थे l रेज टू पावर 3 इत्थे l रेज टू पावर 1 की बनया l रेज टू पावर 4 t रेज टू पावर -1 नाउ m एज इट इज l रेज टू पावर ऊपर 3 4 -1 3 t रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय l रेज टू पावर 4 t रेज टू पावर -1 m एज इट इज l दी पावर ऊपर 3 नीचे 4 बेस सेम विच डिवाइड द साइन की हुंदियां पावर्स सबट्रैक्ट t रेज टू पावर ऊपर -2 नीचे -1 माइनस ऑफ -1 बन गया m l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर -2 प्लस 1 m l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर -1 साडे कोले की आईयां डायमेंशनस ऑफ इट्टा जेकर सानू कोई भी रिलेशन दिता होवे असीं किसी एक चीज़ दा डायमेंशन कढनी होन जिस दियां डायमेंशनस कढनियां उहनूं एज अ सबजैक्ट रख लो तां जो रिलेशन आऊगा बाकी सारियां टर्म्स दियां डायमेंशनस पुट करके उन्होंने सॉल्व करन तो बाद साडे कोल इन दी एंड उस टर्म दियां डायमेंशनस आ जाया करनगियां। नैक्सट क्वेश्चन करदे हां आपां ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅ ਸਮਾਲ ਸਟੀਲ ਬਾਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ r is allowed to fall under the effect of gravity। ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। a column of a viscous liquid ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਟਾ। आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद की है velocity of ball attain a constant velocity बॉल एक फिक्स्ड वेलोसिटी नाल जाना शुरू कर दिंदी है किन्नी वेलोसिटी vt सिंबल नाल रिप्रेजेंट किया की बोल दिंने आ उन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी तो टर्मिनल वेलोसिटी किदे ते डिपेंड करती है वो फैक्टर्स दिते हैं। फर्स्ट है वेट ऑफ अ बॉल दा वेट की है उन्होंने असीं mg नाल रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा। थर्ड रेडियस ऑफ बॉल r by the method of dimensions determine the relation of expression for terminal velocity। ਤਾਂ ਅਸੀਂ terminal velocity ਲਈ expression derive ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ terminal velocity ਹੈ vt ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। फर्स्ट है वेट यानी mg फर्स्ट वाले फैक्टर की पावर असी लिखती a ठीक है। सेकेंडली किदे ते डिपेंड करती पई है विस्कोसिटी ते vt डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ओदी पावर असी लिख ली b। थर्ड वन डिपेंड्स अपॉन रेडियस सो r रेज टू पावर c। सारे फैक्टर्स नूं जदों कंबाइन करांगे की आ जाएगा vt डिपेंड्स अपॉन mg रेज टू पावर a इटा रेज टू पावर b r रेज टू पावर c और इस साइनों से डिपेंड्स अपॉन दे साइनों रिमूव करके इज इक्वल्स टू लिखांगे तो असीं एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे। कॉन्स्टेंट की है k mg रेज टू पावर a इटा रेज टू पावर b और r रेज टू पावर c। हुण असीं डायमेंशनस अप्लाई करांगे। लैफ्ट हैंड साइड ते साडे कोल डायमेंशनस की दियां vt की एक टर्मिनल वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी सो वेलोसिटी वाले डायमेंशनस लिख दो lt -1। राइट हैंड साइड कि डायमेंशनस लिखनी है mg रेज टू पावर a इटा रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c। m दिया डायमेंशनस किए थे mg मतलब की है मास g की है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो की होएगा ये m मास ਲਈ m लिखता और g की है एक्सलरेशन यानी lt -2 सारे दी पावर की है ऊपर a ठीक है। नैक्सट इटा दी डायमेंशनस आपां हुणे फाइंड आउट कीतियां सी की सीगियां m l -1 t -1 रेज टू पावर b
एंड नेक्स्ट वन इज रेडियस L रेज टू पावर C। नेक्स्ट की होएगा M रेज टू पावर A सारे ना मल्टीप्लाई होएगा, L रेज टू पावर A, T रेज टू पावर -2 इंटू A -2A। ठीक है। नेक्स्ट B M रेज टू पावर B, L रेज टू पावर -B, T रेज टू पावर -B और नेक्स्ट L रेज टू पावर C। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। M रेज टू पावर A, ਇੱਥੇ ਕੀ M रेज टू पावर B, बेस सेम पावर्स एड। नेक्स्ट L रेज टू पावर A, ਇੱਥੇ ਕੀ है -B, नेक्स्ट की है +C। नेक्स्ट साडे कोल T की है -2A -B +C। -2A -B इधरली साइड ते T नहीं है, सो नहीं आएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ m रेज टू पावर ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m रेज टू पावर 0 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b। सेकेंडली l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b प्लस c। ਨੈਕਸਟ t रेज टू पावर ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ -1, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ -2a -b। ਇੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -b, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -b -b plus c -2b plus c इज इक्वल्स टू 1 और ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ -2a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ है -b -b। ठीक है, की बन जाएगा 2b -b, b इज इक्वल्स टू -1। तब b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, a इज इक्वल्स टू -1, a इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट जो ਇੱਥੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू -1 प्लस c, 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 -2, सो c इज इक्वल्स टू -1। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ a b ਤੇ c ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ vt इज इक्वल्स टू k mg रेज टू पावर a यानी कि 1, ईटा रेज टू पावर b मतलब -1 और r रेज टू पावर c मतलब -1। तो रिलेशन की बन जाएगा k m इंटू g डिवाइड बाय ईटा डिवाइड बाय r इज इक्वल्स टू vt। किसी दी पावर -1 होवे कोई भी टर्म है तो रेसिप्रोकल विच चले जाती है। तो असीं की करना, जो कोई भी रिलेशन ड्राइव करना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिन्ना फैक्टर्स से डिपेंड करती है वो फैक्टर्स लिख लेने आ, पावर a b c लिख के, फिर डायमेंशन फॉर्मूला अप्लाई करके कोएफिशिएंट्स नू कंपैरिजन कर लेना ते वैल्यूज a b c दियां कैलकुलेट करके वापस पुट कर देनियां रिलेशन दे विच। तो साडे कोल जो एक्चुअल रिलेशन होएगा वो आ जाएगा।